Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of our favorite financial awareness show and the only one in Pakistan actually, The Inside Scoop. So this is the 27th episode of our lovely show. We hope you're enjoying it. यहाँ हम break down करते हैं stock market, decode करते हैं financial mysteries और आपको exclusive insights लाते हैं from the biggest names in the game. मैं आपकी host हूँ मशल खान और आज का episode is packed with market updates. Actually market updates ही होंगी because we have a very special guest coming in who is a top financial mind. तो हमारे साथ रुकिएगा कि stay tuned because आप ये सब नहीं मिस करना चाहेंगे. आज के episode का आगाज करते हैं with PSX की update. कल KSE 100 ने negative 178 points की closing दी थी with a total of 171 million shares traded, almost a flat market, almost. Tuesday को market volatile remain की थी. पहले hour में एकदम से drop हुआ था, intraday low बना था 700 points का. Index ने एक high भी बनाया था 129 points, लेकिन eventually negative closing दी थी at minus 178 points. हमारी top movers की list थी SSGC और SUI South, leading with a decent 26 million shares की volume. SSGC ने investors को an attractive 4% return today दिया था as stock was trading up at 34.99 rupees जब market खुली थी 9 बजे और closing पे it was at 37 rupees. However, stock ने day high किया था of 37.8 rupees. Following SSGC, Bank of Punjab was at number 2. Close to SSGC, Bank of Punjab की volume record हुई थी at 22 million shares. फिर of course WTL, Silk Bank and PSO. मंडे को इंटरेस्ट रेट वाज अनाउंस कि वो चेंज नहीं की जाएगी बाय स्टेट बैंक पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. इन्वेस्टमेंट्स का डर था कि इसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट होगा और शायद एक बड़ा ड्रॉप होगा. ऐसा ड्रॉप विटनेस नहीं हुआ था. हाउएवर हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बिलो एक्सपेक्टेशन थी. लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे. स्टॉक मार्केट साइडवेज फिलहाल ट्रेड हो रही है. सो इफ वी कैन हैव माय फर्स्ट चार्ट ओवर हियर. Market participants essentially अभी they're looking for a trigger. अगर हम यहाँ देखते हैं, this is ये candle, if we can zoom in on this थोड़ा सा, this is called a doji. Doji is your half and half candle, almost. It's not an exact doji, लेकिन doji का essentially मतलब ये होता है कि आपके bulls उतनी ही जोर से ऊपर की तरफ push कर रहे हैं market को and आपके bears उतनी ही जोर से, मतलब आपके sellers उतनी ही जोर से नीचे की तरफ pressure भेज रहे हैं, which ends up making it look like this little doji over here, which is इसका मतलब है कि उसकी wick बहुत छोटी रहती है because there's almost equal amounts of आपके buyers और sellers in the market. तो essentially we have been looking for a trigger and अगर I think हमारा interest rate मज़ीद drop होता तो that could have been a trigger हमारी market के लिए. We could have gone bullish again, but since that did not happen, थोड़ी बहुत हमने correction witness की, but it's okay because अभी फिर भी हमारी market थोड़ी बहुत उठ चुकी है, वरना in the middle it had started taking corrections. कल भी मैंने बात की थी कि it started taking corrections all the way down to 106,000 points, जिसकी वजह से लोग बहुत skeptical हो गए थे कि नई support जो है वो कहीं 106,000 पे ना form हो जाए because the resistance being standing at 118,000 and आपकी support standing at 106,000, ये बहुत बड़ी range है and it's a lot of volatility. तो आपकी जितनी रिटेल है, आपकी जितनी इंस्टीट्यूशन है, वो थोड़े बैकफुट पे आ जाते हैं. बट दैट्स नॉट द केस. वी आर कंसोलिडेटिंग इन अ स्लाइटली स्मॉलर रेंज विच इज सेफ फॉर 4,000 पॉइंट्स के बीच में हम रेंज बाउंड हैं फॉर क्वाइट अ वाइल. तो पोटेंशियली ये ट्रिगर कुड भी आपका सक्सेसफुल रिव्यू IMF टीम से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $1 अरब की ट्रांच मिलेगी. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि फंडामेंटल और न्यूज़ वाइज मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अनसर्टेन हैं. हाउएवर टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओवर हियर वी हैव ट्राइड टू पुश द मार्केट अप. One thing I also want you guys to notice is कि जब this is a very small example, usually fair value gaps काफ़ी बड़ी होती हैं. A fair value gap is a gap opening that आपकी indexes देते हैं. Usually आपकी market की जो tendency होती है 70-75% is कि it always comes down to fill the gap. That's something I'm very careful of. Remember कि markets continuously go up. We do have a very important guest waiting आप लोगों से बात करने के लिए, तो हम एक छोटी सी break लेते हैं. We'll continue this lesson tomorrow. Don't worry, I'm not going to forget. I know we have less time today. लेकिन एक इतनी interesting conversation होने वाली है. I'm so sure we have someone from PMAX, हमारी regulated market जो है for trading commodities, visiting us here today. उनसे बात करते हैं. So stay with us. We'll be right back after a short break. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। हमारी जो रेगुलेटेड कमोडिटीज ट्रेड करने की मार्केट है, इट इज PMEX. PMEX for short, which is what we call it in the capital markets. We have a guest who is the Chief Business Officer at PMEX, Mr. Zaki Ur-Rahman. Thank you so much for being with us. Thank you, Michelle. आपने इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। नहीं, it's our pleasure to have people, especially जो हमारी capital markets में काम करते हैं। आप लोग आके हमारी audience को अपनी expertise share कर सकते हैं उनके साथ, especially आजकल जितना क्रिप्टो का क्रेज चल रहा है, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे। आई थिंक इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट हमारी रेगुलेटेड मार्केट्स में ट्रेड करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहेंगे? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है अभी कि कौन सी लीगल मार्केट है, कौन सी ग्रे मार्केट्स हैं, तो कहाँ काम करना चाहिए। जब पैसे डूबते हैं ना तो फिर आते हैं कंप्लेन करने। जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, मैं आसिफ ने करी है तो उसको प्रॉफिट हुआ है तो मैं भी उसकी देखा देखी कर लूँ। हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है समझदारी के साथ। ये नहीं हो सकता कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसी के पीछे लाइन बना के चल दी। तो सबसे पहले अवेयरनेस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वेस्टमेंट ले लें, आप कैपिटल मार्केट को ले लें, फ्यूचर की मार्केट को हमारी ले लें, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, इसके बारे में मालूमात नहीं होगी, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मेरा मैसेज सबको यही इनिशियली होता है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा करें समझदारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, बिकॉज उनको तो अक्सर PSX का भी नहीं पता होता, राइट? तो PMEX में तो फिर भी सैडली उससे भी कम तादाद मौजूद है। आई बिलीव यू गाइस हैव 40,000 अकाउंट्स, उसमें से एक्टिव कोई 20,000 है। आप थोड़ा सा और क्या, आप थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस हैं जो कि रेगुलेटेड है। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर की तो ऑलमोस्ट कोई 3.5 लाख के करीब PSX में है, जिसमें से एक्टिव हार्डली मेरे ख्याल से, जो मेरी थिंकिंग है, 20-25 हज़ार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह सेम्स हमारे पास भी तकरीबन हमारे पास जो अभी इन्वेस्टर हैं वो तकरीबन 40,000 है और 40,000 में से एक्टिव जो हैं वो ऑलमोस्ट कोई 2 से 2,500 है, 2,000 ओनली। इफ़ यू कंपैरिजन विद अदर ग्रे मार्केट लाइक जिसका आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा जी, तो वहाँ पे अगर आपको मैं ताज़ा बताऊँ तकरीबन 1 लाख तो एक छोटा सा जी ग्रे मार्केट का ब्रोकर लेके चला जाता है। वही बात है कि थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब हम बोलने में कोई पाबंदी है वैसे? नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं एक रेगुलेटेड इदारे से हूँ। नहीं, क्योंकि हम we're not promoting crypto. जी We never promote crypto on the inside scoop. We are promoting financial awareness. हमारी regulated market. Exactly, जब भी आपने मुझे बुलाया कि पाकिस्तान का एक इदारा ऑलरेडी मौजूद है तो लोगों को कम अवेयरनेस है, लेकिन हम इस पे बेइंतहा काम कर रहे हैं। अब हमारी जो न्यू मैनेजमेंट आई है, न्यू MD साहब भी हैं, तो इस पर बड़ा फोकस लिया, हम डिजिटलाइज कर रहे हैं इसको। अब हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और घर घर, गांव शहर जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? हम तमाम कैपिटल मार्केट के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम PSX के साथ भी काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कि खाली PMEX का ही एजेंडा है। बट इन व्हाट कैपेसिटी? बिकॉज अगर मैं पर्सनली बोलूं जी, मैंने एक ऐड नहीं देखा PMEX, बिल्कुल नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं देखी, मैं तो PSX ही भी नहीं देखी। इवन दो क्या मेरे दोस्त वगैरह भी जो है उनको भी नहीं पता था PMEX के बारे में। जब मैं स्पेशली जब मैं मुझे अब हम ये पूरा इसका एक प्लान बनाया अभी हमने कि किस तरीके से इसको डिजिटलाइज करना है, मीडिया में किस तरह से जाना है, किस तरह से सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना है। कि आजकल आपको पता है बच्चे को टिकटॉक हो गया, फेसबुक चलाना हो गया या अदर ऐप करना कितना ईजी वे में हो गया। तो हम उसी के लिहाज से कुछ ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि हु आई एम, हु वी आर, कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह रेगुलेटेड एक बॉडी है, हम किस तरह से हमारे ब्रोकर्स काम करते हैं। वही 3 स्टेप या 4 स्टेप विद इन अ मिनट में आपका अकाउंट ऊपर डिजिटलाइज तरीके से हो रहा है, जो कि आपकी ग्रे मार्केट में हो रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, आप वहाँ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 इदारे आपके, हमारे जो सुप्रा रेगुलेटर है वो SECP है। तो आपको अगर हमारी तरफ से कोई शिकायत है तो अगर हम नहीं सुने तो आप आगे भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको फ़ौरन शिकायत आपकी सुनी जाती है। आपने डबल शाह वगैरह का नाम तो सुना होगा, जो लोगों के पैसे लेके भाग गए कि इन्वेस्टमेंट के हमने पूरा एपिसोड किया था डबल शाह पे। तो एंड टू थिंक, आपको पता है जब मैं रिसर्च कर रही थी, व्हेन आई फाउंड आउट जो लोग गए डबल शाह के पास, जिस मयार के लोग, उस पे इनिशियली जो मैंने स्टेटमेंट दिया, लोगों ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट समझदारी के साथ नहीं करी।
₹2 अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो उसने बोला कि उसको ₹2 का प्रॉफिट हुआ, मैं भी लगाता हूँ, ₹4 हुआ, उसने और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया, उसने ₹10 लगा दिए एकदम। जब ₹10 लगा तो लेके भाग गया। मैं पर्सनली बहुत शकी इंसान हूँ जी। कोई इंसान मुझे बोलेगा ना कि मैं आपको 100% प्रॉफिट, मैं बोले एक सेकंड जी जरा फिर से बताना तुम्हारा तरीका क्या है। Exactly. You get what I mean? Especially when it comes to आपका hard earned money. Exactly. शक करना जरूरी है जिंदगी में, दूसरी चीजों में हम कर रहे होते हैं। पूरा उसके अंदर जानना भी जरूरी है, उसके अंदर घुसना भी जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी कि 100% का मार्जिन आपको प्रॉफिट दे रही है। आज इतना यहाँ बड़े से बड़ा फंड मैनेजर थक गया ऐसे रिटर्न देने में, बड़े से बड़ा आपका ट्रेडर थक गया। कौन सी ऐसी साइंस आ गई, आई डोंट नो, कि वो 100% मिल जाता है। जादू की छड़ी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली जादू की छड़ी। तो वो आपको माशाल्लाह से अवेयरनेस है थोड़ी सी, तो आपने थोड़ा सा हेजिटेट कर गई होंगी, आपने बोला नहीं यार ये फेक ही लग रहा है, कोई फिशी लग रहा है मुझे, तो आप संभल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना फौरन ही वो बातों में आ जाते हैं लोगों के, बोलते नहीं यार मुझे प्रॉफिट फौरन चाहिए। हमारी तो थिंकिंग ही है ना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं साइड पे देखेंगे। भाई लॉस भी होता है बिजनेस में भी लॉस होता है, ये तो ट्रेडिंग है। ब्यूटी क्या है हमारी इस मार्केट की, मैं आपको ये बताता हूँ। PSX जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आपको 3:30 बजे बंद हो जाती है, ठीक है, 3:30-4 बजे के करीब वो क्लोज कर जाता है। हमारी मार्केट जो है, फ्यूचर की जो मार्केट है कमोडिटीज़ की, 21 घंटे की मार्केट है, जिसको हम 23 आवर्स में लेके जा रहे हैं। 22.5 घंटे की मार्केट है। मीन्स अगर आप 2 घंटे भी लगा देना इस मार्केट में 1 मंथ, तो ट्रस्ट मी कि आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और पैसे आराम से डिसिप्लिन के साथ अर्न भी कर सकते हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन जी। PMAX में हमारे बहुत लिमिटेड फोरेक्स पेयर्स हैं, राइट? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। The forex pairs that we trade, right, internationally, आपकी जो what you call it grey market में, you have a lot of options. जी बहुत अवेलेबल पाकिस्तान में तो बहुत। लेकिन how many forex pairs exactly do you have as options to trade? हमारे पास राइट नाउ जो प्रोडक्ट्स के सूट्स हैं वो तकरीबन कुछ 60 के करीब है, ठीक है। और हम अभी न्यू प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसपे मैं नेम ले लेता हूँ, जैसे शिकागो मर्केंटाइल में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, रिटेल की कैपेसिटी के देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में अर्निंग आपको पता है। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ बताते चलूँ, यहाँ पे जो हम ट्रेड कराते हैं PKR रुपीज़ में ही कराते हैं, एंड प्रॉफिट भी अगर होता है तो उसको PKR रुपीज़ में ही कस्टमर को ट्रांसफ़र करा जाता है। सिर्फ वो डॉलर की वो आपको नज़र आ रही होती है स्क्रीन पे, प्राइसेस वगैरह बेड एंड ऑफर पे, तो उसको जब हम इंट्राडे से ऑन डेली बेसिस पे कन्वर्ट करके रुपीज़ में कन्वर्ट करके एंड देन PKR रुपीज़ में ट्रेड करवाते हैं। तो तकरीबन 60 के करीब है, जिसमें से गोल्ड हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट है, फिर आ जाता है आपका ब्रांड आ जाता है, फिर आपका नैस्डैक आ गया, फिर आपका SP 500 आ गया, सिल्वर है हमारे पास। फिर मजे की बात, आप फोकसली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। और आप जो इंडेक्सेस ट्रेड करते हैं, these are on real time? जी बिल्कुल रियल टाइम है। वही जो शिकागो मर्केंटाइल में वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने गोल्ड की बात की, राइट? तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। आई तो पर्सनली My favorite asset class naturally is equity. Especially ladies के लिए खास. Right? तो मुझे equity बहुत पसंद है, तो मैं gold की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती, right? Because I think वो सिर्फ एक hedge है against fiat currency, लेकिन our अवाम really likes it. तो आप बताना चाहेंगे what are the advantages of holding gold in a online form rather than आपका physical form through? देखिए मैं आपको पहले बता दूं गोल्ड की हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। हमारे पास कैश सेटल भी गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट है, और हमारे पास डिलीवरेबल भी है, ठीक है, यानी कि डिलीवरी का ऑप्शन भी है। यानी कि हम अगर आपके डिलीवरी चाहिए आजकल घर पे रखना, इन लिक्विड मतलब टू रिसीव एंड देन टू सेल फिजिकल गोल्ड, राइट? उसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं होती, आपको बाहर ढूंढना पड़ता है, वो सारी चीजें मैच करनी होती हैं, फिर कभी आपको दाम सही से नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारे पास में सप्लायर है 2-3। अच्छा जब वो गोल्ड लेके आते हैं ना हमारे पास, तो हम उसको डबल चेक करते हैं अपने पास, ठीक है, एंड देन चेक करने के बाद फिर हम उसको वॉल्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब आजकल बड़ा हैसल है घर पे रखना, क्योंकि आप जब घर पे भी रखे जाएंगे तो चोरी होने के डर नहीं, और अगर चोरी नहीं हो रहे तो फिर आपको पैरानोया हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि ये भी कोई ले तो नहीं जाएगा, क्या होगा, रखा हुआ है घर पे, मैं लॉक करके जाऊंगी, मैंने कहा तकिए के नीचे छुपा के जाऊंगी, कोई ऐसी कोई देख ना ले, तो ये हैसल फ्री हो जाता है। आपके पास गोल्ड हमारे पास है और डिजिटली आपको शो हो रहा है कि 10 तोला आपका हमारे पास पड़ा हुआ है, एंड आपकी ऐप, हमारी ऐप के अंदर आपको नजर आ रहा है। आपको अगर प्राइस हैच करना है 10 साल के बाद आपने, या 4 साल के बाद अगर आपने सेल आउट करना है तो सेल आउट कर दें, मार्केट के प्राइस आप मार्केट में जाके करते हैं, हमसे डिलीवरी लें, मार्केट में सेल आउट कर दें, आपको कैश मिल जाएगा फॉलो।
3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है कैश सेटल के हमारे पास, मतलब कैश सेटल कर लें, हैच कर लें उधर प्राइजेस को, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब बड़ा एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आए हम मिली तोला के नाम से। उस पर हमने करा गया कि 300 रुपये से मिली तोला, यानी कि तोले का मिली तोला आप ले लें 300 रुपये। लेट सपोज अगर 3 लाख रुपए का एक तोला है आज, तो 300 रुपये से आप ये ले सकते हैं, एक पोजीशन आप ले सकते हैं। तो आपके बैरियर्स टू एंट्री एग्जैक्टली। अब उसको क्या करना है, उसका परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, यानी कि चलता रहे। मेरी विश ये है पर्सनली कि पाकिस्तान की जितनी भी बच्चियां या बच्चे हैं, उनकी जब वो नर्सरी में एडमिशन होता है ना, तो उनकी स्कूल की फीस में वो ऐड हो जाए। एंड जब वो मैट्रिक ओ लेवल ए लेवल कर लें, तो एक हैंडसम सा उनका गोल्ड जमा हुआ हो और उसको सेल आउट करें। यहाँ मैं आपके साथ बहुत डिसएग्री करूंगी। यही चीज आपने सही स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट की है, तो आप आराम से गोल्ड से तो 10 गुना होगा आपके पास। What are the key commodities जो ट्रेड होती है, मतलब सबसे पॉपुलर क्या है? एक तो हमारा गोल्ड हो गया, एक तो गोल्ड हो गया, गोल्ड के अलावा उसके बाद हमारे पास नैस्डैक है, ऑयल है, ब्रांड में, ठीक है। अच्छा, नैस्डैक इज मोर पॉपुलर देन S&P 500? जी, नैस्डैक पे ज्यादा काम होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आई थॉट शायद S&P 500 ज्यादा, S&P 500 पे भी होता है, लेकिन नैस्डैक ज्यादा पॉपुलर है हमारे पास, पाकिस्तानी आवाम ज्यादा पसंद करती है इसको। एंड सेकेंडली फिर सिल्वर पे भी आजकल काम हो रहा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत अप हो गए, तो वो सिल्वर का एक कम रेशो में उनको वो पोजीशनें मिल जाती हैं। फिर आपका आ गया हमारे पास दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिसेस वगैरह हैं, फिर हमारे पास JPY to USD है, फिर करेंसीज के पेयर्स हैं आपस में, तो वो है। मैंने फिर कहा कि ब्यूटी ये कि देखें, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट मार्केट्स खुलती हैं, 22.5 घंटे के भी मार्केट है। सुबह खुलता है जापान, ठीक है, तो प्राइसेस वहाँ फ्लक्चुएट वगैरह होती हैं ट्रेडर के लिए। फिर उसके बाद 4 बजे 7 बजे के करीब US खुलता है, US की मार्केट खुलती है सारे। तो जब 7 बजे खुलती है मार्केट, तो उधर आप देखेंगे तो एकदम से मार्केट शुरू हो जाती है, तेजी मंदी, जिसको आप कहते हैं मंदी तेजी वगैरह, बाय सेल वो शुरू हो जाता है। तो 2 घंटे मैंने आपको कहा ना, 2 घंटे अगर रोजाना ऑन डेली बेसिस आपने इस मार्केट पे लगा दिए, तो ये आप एक अच्छे एनालिस्ट, एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। हमारे यहाँ होता क्या है, प्रॉफिट होने दो वेट करते हैं। अब वो 10 लाख का होगा तो मैं पोजीशन स्क्वायर करूंगा या क्लोज करूंगा। 10 लाख रुपए जब मैं कमाऊंगा, भाई अगर 9 लाख रुपए कमा रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बाहर आ जाओ, पोजीशन स्क्वायर करो, डिसिप्लिन रखो। नहीं, लोग नहीं करते, they get very greedy, they want to continuously make more profit, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, वो डिसिप्लिन का। और फिर जब आप लॉस में बिल्कुल है, हमारे पास चार्ट में है, it is the chart with lots of different वो actually why don't I help the team find this chart? Let's take a short break and be right back after this. Stay with us. It's a very interesting conversation me and Zaki साहब are having. अभी हमारी full fledged debate चल रही है, gold versus KSE 100। आप लोगों को पता है मेरा favorite topic है, कहीं नहीं जाएगा। Stay with us. We'll be right back. This is the Inside Scoop. I am Ashal Khan और हम बात कर रहे हैं with Mr. Zaki और रहमान। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीमैक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर आई बिलीव मिस्टर ज़की उर रहमान। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग विद। अच्छा, हमारी अभी ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। आप लोगों को पता है वेरी अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, क्योंकि मुझे hedges पसंद नहीं है, right? I like तो फिजिकल ले लें asset। नहीं लेकिन even as in physical form वो सिर्फ एक hedge है against fiat currency, right? In the long run। अब proof के बगैर तो आप लोगों को पता है मैं बात नहीं करती। मैंने तो ग्राफ देखी है। अब मैं आती हूँ my favorite graph जो मैं सबको दिखाती हूँ, जो मुझे कहते हैं उनको गोल्ड पसंद है। Here, ladies and gentlemen, the blue line, we have me, aka Pakistan Stock Exchange. Over here, we can see clearly that in the long run, from January 2001 all the way till 2005, जहाँ छोटा सा crossover भी आया है in the value of gold और वो increase भी हुआ है, KSE has quickly taken over। For those लोग जो शायद argue करेंगे कि you, for example, नहीं यहाँ से आपका यहाँ गिर गया, राइट? तो आवर मार्केट गोज इन साइकिल्स। टाइमिंग द मार्केट इज, मतलब बड़े से बड़ा बंदा नहीं कर सकता ना, लेकिन इफ यू से इवन कंजर्वेटिवली आपने टाइम कर लिया, राइट? ये गिर रही थी मार्केट, आपने यहाँ पकड़ ली, मजीद गिर गई,
यहाँ आई आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ वापस ऊपर गई, आप वापस यहाँ घुसे, यहाँ गिरना शुरू हुई, लेकिन आपने यहाँ बेच दिया. इवन ऑन कंजर्वेटिव टाइमिंग्स ऑफ द मार्केट, राइट, इवन अगर आप कहते हैं कि आपने फुल यूटिलाइज नहीं किया मार्केट के टाइम को, इवन यू गो 50%, you still make so much more money, right? Because gold overall, what is the पहले हमारी currency used to be based on gold. Then when governments realize कि वो print कर सकते हैं पैसा without being backed, is a whole different monetary system. अगर हम उसमें घुसे तो हमारा पूरा एपिसोड निकल जाएगा. लोगों को लगता है ना कि सेफेस्ट जो मनी है तो गोल्ड में थी, तो इस वजह से मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था. But they guys perform very well as per your graph. Equity बहुत अच्छी साइड जा रही है PSX की अभी राइट नाउ. इससे इस ग्राफ से तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी आपको पता चल रहा है कि माशाल्लाह से लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, थोड़ी सी आपकी महंगाई में भी कमी आई है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं बोला, अच्छी बातें भी करनी चाहिए. हमेशा ऑलवेज ये नहीं हो कि आप नेगेटिव बातें करें, आज ये हो गया, लेकिन आज ये हो गया. गया. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत दिया हुआ है, इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. मैं मल्टी कंट्रीज में गया हूँ, डिफरेंट कंट्रीज में गया हूँ, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो अर्निंग के पॉइंट्स, जो ईज ऑफ बिजनेस भी यहाँ पर है. देखिए आप जिससे सुने ना तो नेगेटिव बातें करेगा, ये हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये है. भाई आप ये एज पर ग्राफ भी तो देखा, मैं ग्राफ दिखाऊं एक लेमैन को, वो भी बोलेगा नहीं यार ये परफॉर्म भाई हुआ. By the way, this is आपका inflation adjusted. जी बिल्कुल. You know, तो this is, अगर हम इन्फ्लेशन को हटा देते तो फिर तो बहुत स्पाइक्स हैं. मैं तो ओवरऑल एक एज अ एनालिस्ट बात कर रहा हूँ. They did very well. PSX बहुत अच्छा जा रही है. मैं बहुत passionate हूँ about equity. मुझे equity बहुत पसंद है. अच्छा. Coming back to commodities, जो हमारा टॉपिक है. जी. The reason people go toward gold is because बहुत लोग ये ups and downs tolerate नहीं कर सकते. ऊपर से there's a lot of different factors जब आप invest कर रहे होते हैं. Someone like me who is single, who's in her 20s, मेरी risk tolerance बहुत है. ऊपर से I like risk. I am not risk averse at all. मेरी risk appetite है. लेकिन शायद कोई जो अपने late 30s में है, जिनके 2 बच्चे हैं घर पे, right? Who do not have so much of an income, वो afford नहीं कर पाएंगे. To cause too much stress, उनकी quality of life गिरेगी. उनके लिए if they are just trying to चलें, we're not very interested in getting extremely rich, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पैसे जो खाई जा रही है, उसको फाइट करने के लिए तो हम एटलीस्ट गोल्ड रख सकते हैं. और इस पे ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने अभी लास्टली बात करी थी पहले कि इस पे हम तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो AMCs हो, चाहे PSX हो, चाहे हम लोग PMAX, हम एक इंशाल्लाह ताला एक जॉइंटली अवेयरनेस सेशन भी करने जा रहे हैं. मेरी PSX वालों से बात हुई है, उनके डायरेक्टर से भी हुई है. लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई आप like सेमिनार टाइप हो गया. अच्छा मैं जेन्युइनली एक चीज बोलूं, पता है, someone like me who also loves the market so much, right, मैं भी नहीं बैठ पाती, and I'll tell you why. हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं, right, they don't know how to engage an audience. For this, you guys need to consult Gen Z marketers. और अगर उसी के साथ मैं ये कहूँ कि अगर हम डेमो ट्रेडिंग करवाएं लाइव, तो that's very cool. That's very cool. तो वो ही हमारा एजेंडा. हम वो उस लास्ट 80s वाले market this the right way. हम उस 80s 90s वाले एरा में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं डिजिटली. दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो गए, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि आज जिस सामने मेरी ऑडियंस बैठी हुई है वो बोर ना हो. You know, within a 5 minutes में अगर कुछ स्लाइड शो कर दूं, मैं स्लाइड में बताना चलूं, within a 5 minutes भी नहीं, 1-2 मिनट्स में बोर होना शुरू हो जाएगा. तो मुझे ऐसी टेक्निकल तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से डेमो ट्रेडिंग या डेमो स्टेप उनको देना कि आपके मैंने दिए ऑन कर लीजिए, डेमो अकाउंट खुल गया, ये ट्रेड करें आप जरा. तो कुछ एक्साइटिंग किस्म की कुछ गेमिंग प्लान से कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं. वो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला perfectly fine. Please do share it with us. We would love to let the audience know, because awareness share करना हमारा काम है. Thank you so much. मैं again आपका थैंक यू कहूँगा कि आपका इतना पैशन है इसमें, स्पेशली कैपिटल मार्केट में. और मैं डिफरेंट चैनल्स पे भी गया हूँ, लेकिन मुझे इस किस्म का पैशन कहीं भी नहीं मिला एज अ होस्ट. थैंक यू सो मच कि आपकी इतनी नॉलेज भी है, आपको पता भी है मार्केट के बारे में, इक्विटी की मार्केट के बारे में, PMAX के बारे में भी पता है, आपको गोल्ड के बारे में भी पता है. तो ऐसे ही लोग हमें चाहिए जो कि लोगों को बताएं भी. ये हमारी जिम्मेदारी भी 100%. And my entire reason for doing this is because जब मैंने शुरू की थी ना इन्वेस्टमेंट,
पहले तो मैंने बहुत पैसा लूज किया जब मैंने फाइनली एग्जैक्टली और जब आप लूज करते हो ना तो आप लर्निंग इतनी ज्यादा आपकी हो जाती है कि आपको 1 ईयर के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है 100%. So that prompted me to learn and then I realized कि actually investment वो चीज़ है इस मुल्क के हर शख्स को liberate कर सकती है. कुछ kinks हैं that we as you guys as regulatory bodies have to get through. हमारा KYC बहुत है. उस पे काम कर रहे हैं. नहीं उस पे काम कर रहे हैं. देखें KYC जरूरी भी ना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपसे NIC चाहिए आपको मैं आपको बस context देना चाहती हूँ. जी बताएं. At this point अगर and I'm not promoting Binance or any of these different जो भी all of these different वो हैं I do not promote them. I'm just taking the name to give context. जी. अभी if I want to send someone money outside of Pakistan, I can not me. I'm not taking my name. Ahmed is a boy. Ahmed के पास Binance का account है. Ahmed ने किसी को बोला कि जानी कोई कांटेक्ट है जो मुझे USDT दे देगा. अहमद के दोस्त ने उसे फोन कर लिया, उन्होंने भेज दिया बाइनेंस में. ये विदिन 30 मिनट्स पाकिस्तान के बाहर पैसा भेजा है. PKR की डिवैल्यूएशन हुई है, लेकिन यहाँ मशल ने अपना म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट खोलना है तो महीना लग गया, मशल खोल नहीं पाई. आई टोटली एग्री विद यू. ये है फिनोमेना एक पाकिस्तान का, बट इस पे बहुत एक्टिवली काम हो रहा है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पे तकरीबन 4 या 5 एक रुकनी टीम भी बनी हुई जो कि इस जो आउटसाइड पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, जो अहमद का नाम लिया था आई थिंक आपने, तो उन लोगों को उनकी लिस्टें रेडी भी हो गई हैं और कुछ पे अटैम्प्ट भी हो गए. अभी इंशाल्लाह ताला कंट्रोल होना शुरू हो गया. अच्छा पहले से नहीं, आप ये भी तो देखें, बहुत स्मार्ट है. आप ये भी तो देखें, जब आप कोई भी ऐप खोल रहे थे, ओपन कर रहे थे तो फॉरन डिफरेंट ग्रे मार्केट के ऐड आने शुरू हो जाते थे. इफ यू रिमेंबर बहुत ज़्यादा एक्टिवली. अब वो थोड़े से रिड्यूस होने शुरू हो गए. वहाँ PTA भी काम कर रहा है, अब FIA भी काम कर रहा है, हमारे इदारे रेगुलेटेड बॉडी स्टेट बैंक भी काम कर रहा है. तो ये लोग अब एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह आप चेंज देखेंगे. थोड़ा सा रखें हौसला, इंशाल्लाह पैशन रखें. इंशाल्लाह कहती हूं ये लोग रेगुलेट करके लगा दें 70% कैपिटल गेन्स टैक्स. सब पता ही हो जाएगा इंशाल्लाह. तब देखें आप अभी जिस तरह इंडिया ने 60% लगाया है ना अपनी मार्केट को प्रमोट करने के लिए. सी देयर इज अ वे टू डू थिंग्स द वे इंडिया हैज डन इट. राइट, उन्होंने अपने SIPs प्रमोट किए. राइट, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने क्रिप्टो करनी है जी, कर लेते हैं आप लोगों के लिए रेगुलेट. बस ये हमें 60% टैक्स. आहा लवली. इंशाल्लाह ताला देखिए. व्हाट अ प्ले. अभी तो अब न्यूज़ ये भी आई थी ना, हमारे जो मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब. यस. तो माशाल्लाह से उनकी उन्होंने अनाउंस भी करी है साकिब करके, बिलाल बिन साकिब. या ही इज द एडवाइजर टू हिम. स्टार्ट हो गई. बट आई टेल यू व्हाट, पाकिस्तान नीड्स टू हरी. आई रियली होप कि औरंगजेब साहब is going to listen to Bilal. नहीं काम कर रहे हैं, बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी एक्टिवली ये काम शुरू हो चुका है. $18 to $25 billion बिल्कुल जा रहा है. सबको फिक्र है. आप सोचें आपके पास आ जाए 18 PMAX, मतलब आप तो PMAX के पास सोचें ये काम ना करना शुरू कर दो. PMAX कहां से कहां चला जाएगा. PSX के पास हम बेचारे $50 billion के कैब के साथ बैठे. नहीं हो जाएगा. देखिए अच्छी की होप रखें, इंशाल्लाह ताला ये चेंज होने वाला है पूरा सेटअप. देखिएगा आप. This conversation is going so nicely. I'm so glad कि आपने नेगेटिव, मैं कह रहा हूं, मैं नेगेटिव बातों से तो स्टे अवे, मैं तो दूर रहता हूं. I just like to keep a very realistic. जो अच्छी बातें हो रही हैं, जो मैं देख रहा हूं माशाल्लाह, देखें ना आप एक्टिवली कितने काम हो रहे हैं. उन्होंने एक टीम बना दी, फौरन ही काम शुरू हो गया. यानी कि डिफरेंट इदारों से जो बॉडीज हैं उनके फीडबैक लेने शुरू कर दिया. क्या होता है बताओ, किस तरीके से होगा, ईज ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा. फिर रेगुलेटर्स को बताना शुरू कर दिया. तो मीटिंग्स होने शुरू हो गई. मैं एग्री की बात कर रहा था आपसे. हम लोग भी एग्री पे आपको पता है फोकस करना शुरू कर दिया. हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ. हम ये करने जा रहे हैं कि शुगर की हम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एग्रीकल्चर का, हम मंडीज को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं. शेखुपुरा में रेट आपको नजर आ रहा होगा, आपको लाहौर में नजर आ रहा होगा, आपको इंटीरियर पंजाब में नजर आ रहा होगा. अच्छा, मुझे एक प्रॉमिस करेंगे जी, इंटरफेस ठीक करना है. बिल्कुल कर ले. मैं अकाउंट बनाऊंगी, मैं आपको बता दूंगा. आपने कब यूज करा था वैसे? मैंने सिर्फ लोगों के देखे हैं. और नहीं आपने कब आपने यूज करा था? Like 6 months ago, one of my friends trades in PMAX, right? अच्छा. कितनी देर में अकाउंट खुला था उसका? 6 महीने पहले. I have no idea. पूछिएगा जरूर. ठीक है. और मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएंगे आप. ठीक है. फीडबैक जरूर देंगे कि विद इन 3 मिनट्स थोड़ी गेमिफिकेशन कर. नहीं बिल्कुल. मैं आपको लोगों से कनेक्ट करूंगी जो आपको इतनी प्यारी एप्स बना के देंगे ना, आप बोलेंगे वाओ माशर. बिल्कुल करेंगे. और अच्छी एडवाइजेस का ऑलवेज वेलकम. PMAX आपको हमेशा वेलकम करेगा. अच्छी एडवाइजेस है,
बिल्कुल काम करेंगे ओपन हार्ट के साथ, बिल्कुल। एंड यू गाइस ऑलवेज हैव ऑल ऑफ माय हम बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, लाइक हमारी जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनके पास मेरी मतलब फुल सपोर्ट है। मैं पूरा दिन यही कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे बैठी वीडियोस बना रही होती हूँ कि प्लीज आप लोग यहाँ कर लिया करें। नहीं बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं है कि वो Forex ट्रेड कर सकते हैं लीगली। बिल्कुल सही बात है कि इसका एक इदारा मौजूद है पीएमएस के नाम से, लोगों को नहीं इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला प्लान में आपके साथ भी बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिवली इस पे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से करें, I would love that. I would love that. इस चैनल के तरफ से आपको वेलकम भी कहूँगा, आइए विजिट करें हमारे। I would love to. जब भी आपके पास टाइम हो तो आप आइए, एडवाइजेस दें हमें, और मेरा इदारा बिल्कुल रेडी है अच्छे एडवाइजेस के लिए, अच्छे लोगों को इंगेज करने के लिए, किस तरीके से इस मार्केट को डेवलप करा जाए। ये हम सबका फर्ज है। इस पे ये नहीं कि मैं खाली पीएमएस में काम करता हूँ तो मैं करूँ। टैक्स दें यार, अच्छी बात है। इस वजह से आप नहीं आते कि टैक्स है, लेकिन जब तक आप टैक्स नहीं देते ना, आपका हक नहीं बनता अपने मुल्क की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। बस बात है, वहाँ उनको इजी इसलिए लगता है कि ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेड है, टैक्स देना पड़ेगा, मैं डॉक्यूमेंटेड हो जाऊंगा। लोग क्यों डरते हैं डॉक्यूमेंट होने से? भाई हो जाओ यार डॉक्यूमेंटेड, सब पता है। इससे पहले कि आपके पे कोई इदारा आके आपको रेट वेट करे तो आप 100% आराम से कर लें। तो ये इंशाल्लाह ताला। Well, आपको पता है almost the whole episode has gone by and we've just run out of time. I wish we could have continued this. मेरे पास actually honestly like I have so many more questions written, लेकिन इतनी naturally जा रही थी। 100% it would be our pleasure to have you. Same here. Thank you so much for coming. I really appreciate it and I wish the best of luck to PMX. Just KYC, exactly, interface, marketing हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे बहुत फोकसली काम कर, बिल्कुल वादा है, और बिल्कुल इसको आपको करके दिखाएंगे कि मैंने जो आपको बोला था कि अभी हमारे कस्टमर्स कितने, अब इसी ईयर मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ताला मैं इसको डबल कर दूंगा इंशाल्लाह। और मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से tomorrow morning, same time, same place, the Inside Scoop. This is Mahal. Let's see you tomorrow morning. Take care. Khuda Hafiz.